Zone 4G. Let's get digital. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج ہم گفتگو کریں گے 10 مئی کی ہڑتال ہے پورے آزاد کشمیر میں. ہڑتال کی گئی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپیل ہے اس ہڑتال کی, اور اس میں کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر بھر میں اور کیا حالات ہیں, کیا جو ہے نا مختلف اضلاع سے رپورٹس ہیں, اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ میرپور سے, کوٹلی سے, اس کے علاوہ پونچھ سے, پھر ساتھ ساتھ مظفر آباد سے اور نیلم سے مختلف لوگ موجود ہوں گے جو ہم سے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری کمشنر مظفر آباد سے بھی ہوئی بات اور ڈپٹی کمشنر سے بھی, اور ہمارے رپورٹرز نے آج دن بھر شہر میں جو تازہ ترین حالات تھے ان کا جائزہ بھی لیا اور مختلف واقعات کی کوریج بھی کی کہ یہاں پہ کیا صورتحال رہی. تو مظفر آباد میں مجموعی طور پہ امن و امان کی صورتحال بہتر رہی اور بڑے پرامن انداز میں اپنے بنیادی جو حقوق تھے ان کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آواز بلند کی اور بڑا ایک جو ہے نا لوگوں نے پرامن اس کو رکھا مظفر آباد کے اندر. اور یقیناً اس میں انتظامیہ کا بڑا ایک اہم کردار ہے, اور انتظامیہ نے بھی اور پولیس نے بھی اور عوام نے بھی بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا. کچھ علاقوں سے ناخوشگوار واقعات کی کل اطلاعات موصول ہوئی تھی. ڈڈیال میں ایک واقعہ رونما ہوا آنسو گیس کی جو ہے شیلنگ کے ذریعے سے کچھ طالبات جو ہے نا وہ معمولی سی متاثر ہوئی, اور اس پہ پھر جو ہمارے وہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایم ایس ہیں ان کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا کہ کوئی زیادہ خطرناک صورتحال نہیں تھی, اور میڈیا میں جو اطلاعات آ رہی تھی کہ کوئی جو ہے نا اسٹوڈنٹ یا کوئی بچی ہماری جاں بحق ہوئی ہے, تو وہ اطلاعات بعد میں غلط ثابت ہوئی. تو پرامن فضا ہی تقریباً آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے آج ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے. میرپور سے کچھ دیر بعد ہمیں وہاں کے سینئر صحافی حافظ محمد مقصود خان ہمارے ساتھ موجود ہو گئے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا حالات رہے اور کیا کچھ صورتحال وہاں پہ جو ہے نا وہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم کوٹلی سے اور باقی آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی ہم آپ کو ملوائیں گے ان شخصیات سے, ان لوگوں سے کہ جو آج سارے حالات سے باخبر رہے اور ان کے سامنے ساری وہاں کی صورتحال جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ رہی. تو سب سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میرپور میں ہمارا رابطہ ہو جائے, اور میرپور میں جو ہمارے اس وقت سینئر صحافی ہیں اور ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً حالات حاضرہ پہ تبصرہ اور تجزیہ کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہوتی ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. السلام علیکم حافظ محمد مقصود صاحب. وعلیکم السلام سعید الرحمان صدیقی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. حافظ محمد مقصود صاحب, آپ میرپور, بھمبر, کوٹلی کے علاقوں میں آج سارا دن مختلف نشریاتی اداروں کو حالات بھیجتے رہے, رپورٹس بھیجتے رہے, اور وہاں کی صورتحال سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ میڈیا کو آگاہ کرتے رہے. تو کیا صورتحال ہے میرپور کی؟ میرپور تو مجموعی طور پر آپ امن پسند لوگوں کا شہر کہہ سکتے ہیں اس کو جی, اور انہوں نے ماضی میں بھی ایک طویل جدوجہد کی اور اس کا بھی حاصل کچھ نہ ہوا, اور بعد میں اس کی قیادت کی وزیر اعظم نے بار کے سے خطاب کے دوران بھی خوشخبریاں سنائی کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میرپور کے اور آزاد کشمیر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے, لیکن وہ اپنے وعدے کو عملی جامہ ابھی تک نہیں پہنا سکے. اور مین ٹائم اب یہ جو 9 تاریخ کا معاملہ تھا اور 11 تاریخ کے ایکشن کمیٹیوں کی جو کال تھی اس کے اوپر میرپور میں تو کوئی اتنا رد عمل سامنے نہیں ہے. البتہ ڈڈیال میں جو کچھ ہوا تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کافی اور حالات خراب بھی ہوئے. اے سی صاحب جو ہے وہاں پر انہوں نے کوئی تھوڑا سا
जो शान शौकत है तो उसको जरा जाहिर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आवाम मुश्तइल हो गए और उनके साथ फिर पुलिस वाले भी बेचारे कुछ रगड़े में आ गए हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या डडियाल में रूनुमा हुआ। लेकिन मीरपुर में आज भी एक इजलास था बार का, जिसमें 100 से जायद वकला ने रिक्वेजिशन दी हुई थी कि अवामी मामलात के लिए बार खामोश क्यों। चंद दिन पहले डीसी मीरपुर के साथ मुलाकात में बार के सदर और अहदेदारान और जबकि बाकी ताजिर तंजीमों के जो नुमाइंदगान थे, यहाँ पर तो 5-6 तंजीमें हैं ताजरों की, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के जो असम्बली मेंबरान हैं मीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले, उनकी काफियों से ऐलान लातलकी का इजहार तो कर दिया है। तो आज जो रिक्वेजिशन 100 से जायद मेंबरान ने की हुई थी सदर के हवाले से इजलास बुलाकर अवामी मामलात के ऊपर जो है एक फाइनल राय दी जानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से 60 से जायद जो है वो लोग इकट्ठे नहीं हुए और रिक्वेजिशन जो है ना वो फिर सदर में दी गई है कि बंदों की तादाद पूरी नहीं है, तो इसलिए इसका कोई नहीं है, तो फिर देखेंगे। तो उसके बाद फिर अंजुमन ताजरा के कुछ एक्टिविस्ट है, उन्होंने इजलास बुलाया हुआ था 2:30 बजे, वो भी जारी है, उसकी तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया। लेकिन मजबूत तौर पर मैं बात बताना चाहता हूँ कि मीरपुर में नॉर्मली जुम्मे वाले दिन तकरीबन 70-75% दुकानें जो है ना वो बंद रहती हैं और कुछ दुकानें नमाज जुम्मा से पहले 12 बजे तक खुलती है, लेकिन ज्यादातर दुकानें जो है वो फिर जुम्मे की नमाज के बाद असर से खुलती है। इज्तिमाई तौर पर यह अगर कहो कि किसी अंजुमन ताजरा की एक्शन कमेटी की कॉल पर लोगों ने 100% यहाँ से उनका के साथ ताउन किया, पॉसिबल। ये लोग इंफरादी तौर पर दुकानें, होटल, खाने पीने के मराकज वगैरह जो है खुले हुए हैं इस वक्त। जी अच्छा हाफिज साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बताई सूरत हाल कि जो जुमे को अमूमन मीरपुर में लोग दुकानें आपकी आवाज कम आ रही है ना जी, आपकी कॉल आई है तो मैं सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो गया, थोड़ी सी कोशिश करें आवाज जी। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आपने बताया कि मीरपुर में वैसे भी जुमे को कारोबारी सूरत हाल कदरे जो है ना वो कम ही रहती है, लोग जुमे का एहतमाम करते हैं और मुझे भी अंदाज़ा है इसका बखूबी। तो मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल आप देखते हैं मीरपुर के अवाम की जानिब से, मजीद इस पे कुछ? हो रही है जी, बोलिए जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं बाकी अजला में, बिम्बर में, कोटली में, वहाँ से क्या इतलात है? बिम्बर में भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, तो कोटली में कोई दरमियानी सतह के इतमाद की है तो, लेकिन डडियाल का जो है ना वो मामला कल की वजह से ज्यादा फ्लेयर अप हुआ है और बच्चियों के हवाले से जो कुछ इतलात हैं कि वहाँ पर उनके जख्मी होने तालिबात के बेहोश होने की वजह से भी वालिदैन में और लोगों में एक इश्तियाल पैदा हुआ और एक फितरी कुदरती रद्द-ए-अमल था, और लेकिन उसको ज्यादा वहाँ तो इंतजामी ऑफिसर ने ही अपने रवैये की वजह से दी। अब ये अपने लोग हैं, इन लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ, ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर मुजाहिरे नहीं है, तो न मैं ये कहूँगा कि कोई रियासती जो यहाँ पर हुक्मरान है उनके खिलाफ नहीं है, ये तो बेचारे अपने इनकी और जायज मुतालबात है। अच्छा हाफिज मकसूद साहब, हमारे साथ इस वक्त रावला कोट से सरदार आबद सदीक साहब भी मौजूद हैं। के लिए जो खर्च करते हो उसको जरा डाइवर्ट करे ना, तो इनको लोगों को सहूलत दे। बिजली पैदा करने में मंगला डैम का भी बहुत हाफिज साहब रोल है, तो क्यों नहीं यहाँ के लोगों को लोड शेडिंग बदस्तूर सामना करना पड़ रहा है, और फिर उनके ऊपर तरह तरह की जो टैक्सेस है बिजली के बिल के अलावा, ये एक बहुत बड़ी अफ्ताद है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब राजा सदाकत हुसैन साहब की तरफ से जो हियरिंग के दौरान जो कमेंट्स आए, जो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव किस्म की बातें गुफ्तगू की है, और लोगों को उम्मीद है कि अब ये रिलीफ जो है बिजली के मामले में
उनको जरूर मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। क्या कि मजबूरी तौर पर यह कहा जाए कि कोई रियासत के खिलाफ कोई इस तरह की चीज है, इन्होंने तो वैसे ही पाकिस्तान से पीसी और एफसी मंगवा के तो अपने नाम के ऊपर एक धब्बा लगा लिया। मुझे नहीं समझ आता, अनवार साहब जो वज़ीर आज़म साहब हैं, एक बड़े अच्छे और माजी में इनकी बहुत अच्छी थी रैपो भी, शोहरत भी रही है, लेकिन न जाने कौन से एडवाइजरों में गिर गए हैं कि इस तरह की सूरत इन्होंने जो है एडवाइजरों की वजह से पैदा हो रही है। और मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ ये लोगों को अपने हमनवा बना सकते हैं, जरूरत इस अमर की है। जी जी हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे सरदार आबिद सिद्दीक साहब भी रावलाकोट से मौजूद हैं। माशाल्लाह। जी आबिद सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ये ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा आबिद सिद्दीक साहब, अभी हाफिज मोहम्मद मकसूद साहब ने मीरपुर बिम्बर की सूरत हाल बताई है और मजबूरी तौर पे उन्होंने बताया कि पुरअमन एहतजाज है, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रोनमा नहीं हुआ। आप बताइए जरा वहाँ की पुंछ की सूरत हाल आज की हड़ताल के हवाले से क्या है? देखिए सईद साहब, जैसा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में आज चूंकि स्ट्राइक है और आज हड़ताल का ऐलान आज के लिए तो नहीं किया गया था, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो 11 मई से किया गया था। तो ये गैर मुतवक्किल तौर पर डडियाल में वाले वाक़या के बाद फिर ये ऐसी सूरत पैदा हो गई। तो रावलाकोट चूंकि इस हवाले से आप मरकज समझ लें, चूंकि यहीं से कॉल दी गई थी, तो उसके बाद ये थोड़ा सा बाकी इजला की इसको यहाँ पर बड़ा पुरअमन रहा कि आज भी जो है वो रात 12 बजे, दशता रात 12 बजे के बाद सड़कें जो है वो कुछ रुकावटें खड़ी करके बंद की गई, लेकिन इंतजामिया ने उसे नहीं हटाया था। और जो लोगों ने आज खुद भी जो है वो गाड़ियां सड़कों पे नहीं लाई, इसलिए आज पूरा दिन समझ लें शहर में जो है वो गाड़ियां नहीं चल सकी। और डबल सर्विस गाड़ियां जो दीगर इजला से आ रही थी वो भी रावलाकोट नहीं आ सकी। लेकिन उसमें जो इंतजामिया या पुलिस की तरफ से कोई रुकावट भी नहीं डाली गई या फिर ये कि तारीन को रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। जुमा के बाद जो है वो यहाँ पर एहतजाजी जलसा शुरू हुआ था जो अभी तक जारी है और कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया कि इसके बाद जो है उन्हें क्या करना है। जी अच्छा आबिद सिद्दीक साहब, क्या हालात देखते हैं पुंछ के आगे मजीद इस एहतजाज को अगर देखें आप तो? हमारी जो बात होती हुई है, जो हुकूमती अहदेदारान है या जो इंतजामी अहदेदारान है उनसे, तो उनका तो यही है कि अगर पुरअमन तरीके से ये एहतजाज जारी रहता है तो फिर वो इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई बेदामनी पैदा करने की कोशिश की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया या सड़कें ज्यादा देर तक ब्लॉक करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद फिर कानून हरकत में आएगा। लेकिन जो मेरे अपने हमारे जराए हैं वो यही है कि शायद ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये जफराबाद की तरफ कल लॉन्ग मार्च की कोशिश करेंगे तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रोका जाएगा, क्योंकि उनकी भी यही है कि अपने अपने जिला के अंदर ही इनको रोका जाए, जफराबाद की तरफ वो न करें। जी बहुत शुक्रिया सरदार आबिद सिद्दीक साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया। मसल मौजूद थे मीरपुर से, कोटली से, बिम्बर से और रावलाकोट से सीनियर सहाफ़ी। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वहाँ के हालात बताए और क्या सूरत हाल रही और किस तरह के कोई वाक़यात हुए, वो सारी आपको लम्हा बलम्हा सोना FM 89.4 बता रहा है। तो मुजफ्फराबाद के हवाले से भी आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद में सुबह से ही माहौल बड़ा पुरअमन है और हड़ताल तो बड़ी भरपूर है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे भी चौकस हैं, मुतहरक हैं। कमिश्नर मुजफ्फराबाद की सड़कों पे मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर को हमने देखा, SP को देखा, SSP साहब को, और उसके अलावा भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले बाकी जो हमारे अहबाब थे वो बड़े मुतहरक रहे और किसी भी ऐसे वाक़े से कि जिससे सरकारी अमलाक या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंच सके, उसको रोकने के लिए पुलिस के एहलकार हम वक्त मुतहरक पाए गए। और मैं इसको क्रेडिट जो है ना दूंगा जॉइंट एक्शन कमेटी को भी कि जिन्होंने बड़े पुरअमन अंदाज में और बड़े महज़बाना अंदाज में आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज किया। कहीं भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, कोई खुदा न खास्ता इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ।
और एक वाक़या जिसका प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हमने जिक्र किया कि डडियाल में एक गलत फहमी की बुनियाद पे और एक जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कुछ ऐसी चीज़ें आई मंजर आम पे जिसके ज़रिए से इश्तियाल पैदा हुआ, लेकिन बहसीत मजमूई बड़ा एक पुरअमन और बड़ा एक बावकार एहतजाज जो है ना वो था। यकीनन सुना FM 89.4 हर जानिब का मौक़िफ़ अपने देखने और सुनने वालों को पेश करता है और हमेशा एक आज़ादाना मीडिया पॉलिसी पे अमल पैरा रहने पे यकीन रखता है। यही वजह है कि हम एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपको इस सारी सूरत हाल में बताते रहे, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से लेके एक आम हुकूमती एहलकार को भी हम वक्तन फ़क्तन आपके सामने पेश करते रहे और साथ साथ हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को भी और उनको भी हम वक्तन फ़क्तन यहाँ पे बिला तखसीस हमने उनको बुलाया ताकि लोग दोनों जानिब के मौक़िफ़ को समझ सकें। और हम भी इसी पे यकीन रखते हैं कि यकीनन जब आप किसी को गुफ्तगू शनीद का वो देते हैं वक्त और जब आप लोगों का मौक़िफ़ सुनते हैं तो इससे मसाइल जो है ना वो हल होते हैं, मसाइल जो है ना सुलझते हैं। तो यकीनन हमारी नशरियात आज इस वाले से ख़ास तौर पे पेश हुई हैं कि आज के वाक़यात को अपने देखने और सुनने वालों को लम्हा बलम्हा बताते रहें, आगाह करते रहें। यकीनन सबसे अहम जो है ना वो चीज़ हमारा अमन है और हमारे खित्ते में एक रवादारी की बड़ी भरपूर फ़ज़ा मौजूद है, हमारे खित्ते में बर्दाश्त की बड़ी एक अच्छी फ़ज़ा मौजूद है और बड़ी मिसालें जो है ना हमारे खित्ते के बारे में दी जाती हैं मुल्क भर में कि आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा अच्छा माहौल है, एक पीसफुल इलाका है। इसी वजह से यहाँ पे सियाहत बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो बढ़ रही है। मुल्क भर से भी और दुनिया भर से भी सियाह यहाँ पे आते हैं और आज़ाद कश्मीर जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी बुनियादी वजह ही इस खत्े का पुरअमन होना है, इस खत्े में जो है ना रवादारी का जो है ना फ़रोग होना है। तो पुलिस भी हमारी है, एक्शन कमेटी भी हमारी है, सिविल सोसाइटी की तंजीमें भी हमारी हैं, हम सब आपस में एक ही हैं। हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होने से पहले ये सोचना होगा कि कल फिर हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है। और पुलिस को पे पथराव करना, पुलिस को इश्तियाल जो है ना वो दिलवाना मुनासिब नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ और ऐसे वाक़यात बहुत कम जो है ना देखने में आए कि रिपोर्ट हुए और अच्छी खासी फ़ज़ा रही है अमन के हवाले से यहाँ पे। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।